خفتم أن تدخلوا الجنة ولما مستهم البأساء والضراء حتى يقول الرسول ألا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورة البقرة آیت نمبر 214 سے 216 تک تلاوت کی گئی ہے. ان مختصر آیات میں اللہ تعالیٰ شانہ نے بہت ہی واضح انداز سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ لوگ جو جنت کی آرزو میں عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں ان کو سے مخاطبت ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تمہیں ان لوگوں کی حالت پیش نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے. یہ انبیاء ماسبق کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام نے جس طرح ساتھ دیا اور مصیبتیں اٹھائیں اور کس قسم کی تکالیف جو ہے نا آپ کو دی گئی. یہاں تک کہ شعبہ ابی طالب میں آپ کا سوشل بیکارڈ جس کو سماجی مقاطعہ کہتے ہیں وہ تک کیا گیا. وہ ایک ایسی جو ہے آپ کی سزا ہوتی ہے کہ کم سے کم جو ہے حکومت کی طرف سے آدمی کو جیل میں ڈالا گیا تو وقت کا کھانا پانی کسی بھی انداز سے وہ ملتا ہے. آدمی کو جو ہے نا اس کی فکر نہیں ضرورت نہیں پڑتی کہ جو ہے نا مجھے صبح ناشتہ کیا تو دوپہر میں کیا ملیں گا, محنت کروں گا کماؤں گا. وہ نہیں, جب حکومت کسی کو جیل میں ڈالتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے کھانے پینے اور اس کو بیمار پڑا تو جو ہے نا دوا دارو کرنے کی ذمہ داری حکومت کو ہوتی ہے. لیکن کسی گاؤں میں رہنے والوں سے کوئی جو ہے نا کسی برادری کے لوگ سوشل بیکارٹ اگر کرتے ہیں تو دکان سے جا کے کوئی سودا لیتا ہے تو سودا نہ ملے, حالانکہ اس کے پاس وہ قوت خرید ہے, پیسہ ہے اس کے ہاتھ میں, اور پھر اس کے باوجود سامنے اناج موجود ہے, اس کی ضروریات کی جو زندگی کی چیزیں جو دکانوں پہ ملتی ہیں وہ میسر ہیں, لیکن لوگوں کی طرف سے سماجی مقاطعہ سوشل بیکارٹ کی وجہ سے وہ اس کو وقت پیسہ رسید ہونے کے باوجود بھی نہ وہ چیز حاصل نہ ہو تو اس وقت اندازہ لگاؤ کہ آدمی کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے. تو جیل سے رہنے سے زیادہ جو ہے نا یہ سوشل بیکارٹ ہوتا ہے. سماجی مقاطعہ آج ہندوستان کی سرزمین پر جگہ جگہ جو ہے گاؤں قریوں دیہاتوں میں جو یہ برہمن یا پھر اعلیٰ ذات کے طبقہ اپنے آپ کو اونچا اور پھر جو ہے نا آپ کے یہ وسط اقوام کی جو ہے نا شودر یا پھر ان کی جو ہے آپ کے نچلا طبقہ سمجھتے ہیں, اس کے ساتھ میں جانوروں سے زیادہ جو ہے نا آپ کی بدسلوکی کی جاتی ہے. تو یہ سلسلہ ہندوستان کی سرزمین پر چل رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, اخبارات میں آتا ہے, اور پھر کسی نہ کسی بہانے جو ہے نا گاؤں کی پنچایت بیٹھتی ہے اور وہ جو ہے نا کوئی فیصلہ لیتی ہے کہ بھائی اس کا جو ہے سوشل بیکارٹ کرنا چاہیے. مطلب یہ کہ اس کے ساتھ گاؤں کے لوگ نہ بات کریں نہ اس کو جو ہے نا کوئی چیز کا جو ہے لین دین کریں, تو وہ اس جیل سے زیادہ جو ہے نا آپ کی سزا ہوتی ہے. گورنمنٹ اگر کسی کو جیل میں ڈالتی ہے تو اس کی جو ہے نا اس کی کھانا پانی وقت کے اوپر اس کا دوا دارو کرنے کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے, چاہے وہ کسی نہ پارٹی کی حکومت ہو. تو مگر یہ سوشل بیکارٹ جو ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. آدمی جو سب کچھ رہ کے جو ہے نا آپ کے اس کو استعمال نہیں کر سکتا. تو اس طرح کا عمل, اس طرح کا واقعہ اور یہ جو ہے نا یہ پورا پروسیس جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ میں ہوا, اور لوگ تنگ آ کے جو ہے وہاں کے مشرکین عرب جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا ساتھ دینے والوں کا سماجی مقاطعہ کیا جائے. تو اس طرح شعبہ ابی طالب میں تقریباً
2.5 से पौने 3 साल तक जो है आपके साथ ये मामला गुजरा। और जो है हदीस में तारीख में आता है कि भूख की शिद्दत का आलम था कि जो है जो खाने के लिए अनाज मुयसर नहीं रहा तो कभी सूखे पत्ते झाड़ के होते वो खाते जो है ना पेट की जो है आपकी गर्मी को उसको कम करने के लिए जो आया सामने, यहाँ तक कि एक ऐसा चमड़ा जो है जो ज़मीन में आधा गड़ा हुआ और आधा ऊपर था, तो उसको निकाल के धो के साफ करके पानी में जो है ना उसको डाल के जो है ना उसको चमड़े को जो है ना मुँह में रख के जो है चबा के जो है ना अपनी भूख के ऊपर काबू पाने की कोशिश की गई। कितनी मुसीबतें उठाई गई। ये दीन आसानी से मुसलमानों को मिल गया यहाँ पर। आप मुसलमानों के ख़ानदानों में पैदा हुए, ना इन जो है ना आजमाइशों से गुजरना पड़ा जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ अहद कहने पर जो है, क्योंकि मामला मुशरिकीन का मामला था। हर बात में हर रोज़ एक नए बुत की पूजा होती थी, तो ऐसे मुशरिकाना माहौल के अंदर अहद कहना जो है ना बहुत बड़े जो है ना आपके अपनी मुसीबतों को अपने पास दावत देने की बात थी। तो इस तरह सहाबा कराम ने जो है ना इन मुसीबतों को झेला, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झेला, साबित कदमी के साथ रहे। इसीलिए कुरान करीम में आता है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। और अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो कुफ्र के मुकाबले में शीशा पिघलाई हुई दीवार की तरह मजबूती से जो है आप पे ठहर जाते हैं। तो अगर ये ईमान की मजबूती नहीं होती तो ये जो है इस्लाम आज जो है सारी दुनिया में नहीं फैलता, और ये इसकी नेमतें जो ना आज आप तक और हम तक जो पहुँची है वो यहाँ तक नहीं आती। लेकिन जो है तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हम हासिल क्या तुम ख्याल करते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, और अभी तुम्हें उन लोगों की सी हालत पेश नहीं आई जो तुमसे पहले गुजरी। तो ये जन्नत में दाखिल होने के लिए किस कदर जो है ना आपके इम्तिहानात होती हैं, आजमाइशें आती हैं, इब्तिलाएँ आती हैं, सब्र की मंजिलों से गुजरना पड़ता है। उनको सख्ती और दुख पहुँचे और खूब हिलाए गए, यहाँ तक कि रसूल और वो लोग जो उनके साथ ईमान लाए थे बोल उठे कि अल्लाह की नुसरत करो। ये आलम हो गया कि जो है लोग इंसान की क़ुव्वत बर्दाश्त और उसके सब्र और सब जवाब दे दी। उसके बाद फिर जो है वो कहने लगे कि अल्लाह की नुसरत कब आएगी, मता नसरुल्लाह। तो जब उनको सख्ती और दुख पहुँचे और खूब हिलाए गए, यहाँ तक कि रसूल और वो लोग जो उनके साथ ईमान लाए थे बोल उठे कि अल्लाह की नुसरत कब आएगी। सुनो, अल्लाह की नुसरत करीब है। अला इन्ना नसरुल्लाह करीब। मिसल के माना नंबर 30 में बयान हो चुके, मगर कभी मुराद जिससे किसी चीज़ का वस्फ होता है, यहाँ माना यही माना यहाँ मुराद है, यानी हालत। ज़ुल्ज़ुलु ज़िलज़ाल के असल माना सख्त हरकत दुनिया है, सख्त हरकत देना है, और मुराद मसाइब का आना है। लिसानुल अरब में असाबतुल कौम ज़ुल्ज़िलतन लफ्ज़ माना कौम पर ज़ुल्ज़ला आया, और माना तकलीफ व तहज़ीर का आना लिखे हैं। और ताजुल अबूस में ज़िलज़ाल के माना बुलाया, शदायद बला या शदायद अहवाल लिखे हैं, यानी बलाएँ, मुसीबतें, खौफनाक हालात। हदीस में है अल्लाहुम्मा अहज़िम अल-अहज़ाब व ज़ुल्ज़िलहुम, जहाँ ज़ुल्ज़िलहुम के माना इब्न असीर ने किए हैं कि उनके अम्र को घबराहट और परेशानी की हालत में और नाकाबिल क़ियाम कर दे, जो खुद कुरान करीम में जंग अहज़ाब के ज़िक्र में है। हुनालिका इब्तलल मुअमिनून व ज़ुल्ज़िलू व ज़िलज़ालन शदीदन, सूरह अहज़ाब में आया है। बस ज़लज़ले से मुराद यहाँ शदायद और शदीद की जमा है, शदायद, और तकालीफ का आना ही है, या बिलखुसूस वो शदायद जो जंगों में पेश आता है। तकालीफ का आना ही है बिलखुसूस वो शदायद जो जंगों में पेश आते हैं, हक़ के क़याम में मुश्किलात। जब ये बताया गया कि कितना बड़ा काम तो मुसलमानों को सपोर्ट किया गया है कि कल दुनिया के अख्तिलाफ़ात, कुल दुनिया के अख्तिलाफ़ात को दूर करो, तो ये भी बयान कर दिया कि हक़ का दुनिया में कायम करना किस कदर मुश्किल काम है। वो बहुत आसान नहीं है कि ये जो है आदमी जो है ना आसानी से जो है ये काम को लेके उठा है। लेकिन
दुनिया में हक का दुनिया में कायम करना किस कदर मुश्किल काम है और किस कदर दुखों का सामना है। छोटे पैमाने पर हक कायम करने के लिए भी क्या क्या मसाइब उठाने पड़ते हैं, क्या क्या मसाइब उठाने पड़े। तो अब इस अज़ीमुश्शान अमर के क़याम के लिए किन किन तकालीफ का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मसाइब ही कामयाबी की कुंजी हैं, उनमें पढ़ने के बग़ैर इंसान उनमें पढ़े बग़ैर इंसान के पुख्ता नहीं होता तो जन्नत किस तरह जा सकता है। सवाल था जन्नत में दाखिल होने के मुताल्लिक़, और जवाब में फरमाया कि अल्लाह की नुसरत करीब है। बस मोमिनों के लिए जब खुदा की नुसरत आती है और उनको कामयाब करके मंजिल मक़सूद तक पहुँचाती है तो वो भी उनके लिए जन्नत ही है। इस आयत में साफ इशारा जंगों की तरफ है। ये भी बताया कि अल्लाह की नुसरत उसी का नाम है जब असबाब से मायूसी हो जाए और चारों तरफ नाकामी ही नाकामी नज़र आए और दुश्मन का गलबा बढ़ता चला जाए, यहाँ तक कि मोमिन जो अल्लाह ताला के वादों की सदाकत पर ईमान रखते हैं बोल उठते हैं कि अल्लाह की नुसरत कब आएगी। तब नुसरत इलाही आती है और अल्लाह ताला अपनी जनाब से कोई ऐसे सामान पैदा कर देता है कि दुनिया हैरान रह जाती है और जो बात अनहोनी मालूम होती थी वो हो जाती है। तो ये पूरा नक्शा जो है जंगों में जो बताया, इस तरह जो है सहाबा कराम ने साबित कदमी का मुजाहरा किया और फिर साथ देने वालों ने मुसीबतों के अंदर ये कहा कि बता नसरुल्लाह, कि अल्लाह की फतह कब आएगी। तो अला इन्ना नसरुल्लाह करीब, तो अल्लाह ताला ने इसके की बशारत दी है। तो यहाँ यसअलूना कमाज़ा युनफ़िक़ून, खुद से पूछते हैं कि क्या खर्च करें। कह जो कुछ भी अच्छे माल से खर्च करो तो माँ बाप और करीबियों और यतीमों और मिस्किनों और मुसाफिर के लिए है, और जो कुछ भी तुम नहीं करोगे तो अल्लाह उसे जानता है। खैर के माना माल कसीर में बयान हो चुके हैं, मगर खैर उस माल को भी कहते हैं जो महमूद तरीक़े पर जमा किया जाए। महमूद तरीक़ा क्या? जायज़ तरीक़े पर। जब हक़ की खातिर दुख तकलीफ़ें उठाने का जिक्र किया और जंगों की तरफ इशारा किया तो साथ ही इन्फाक यानी माल खर्च करने की ज़रूरत भी बताई। और पहले इससे आयत में माल खर्च करने का जिक्र करके और दूसरे में नेकी करने का जिक्र करके बताया कि अपने खुआ को अच्छे मौके पर लगाना भी इन्फाक में ही दाखिल है। इंसान को अल्लाह ताला ने सेहत दी, क़ुव्वत इरादी दी, ये उसकी जो सलाहियतें हैं वो नेकी के रास्ते के ऊपर हक़ की तलक़ीन के लिए अगर वो अपनी सलाहियतों को लगाता है तो इंफाक फी सबीलिल्लाह में शुमार होता है। कि आदमी अपने पास में कुछ पैसा है, दौलत है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से सामने वाले की ज़रूरत पूरी होती है, वो कर रहा है तो वही जो है ना आपके सवाब की बात नहीं है। इंफाक की तारीफ़ में ये भी है। और दूसरे में नेकी करने का, माल खर्च करने का जिक्र करके और दूसरे में नेकी करने का जिक्र करके ये बताया कि अपने खुआ को, अपनी ताकतों को, अपने खुआ को अच्छे मौके पर लगाना भी इंफाक में भी दाखिल है। क्या खर्च करें? इसका जवाब ये दिया कि जो कुछ खर्च करो वो माँ बाप वगैरह के लिए ही है। गोया फरमाया जो कुछ खर्च कर सकते हो करो, आखिर ये खर्च करना तुम्हारे अपने लोगों की भलाई के लिए ही है। या तो यूँ कि इंफाक का पहला मसरफ वालिदैन और करीबियों मतलब कि रिश्तेदारों, यतीमों वगैरह की तवज्जो ही है, और या यूँ कि तुम्हारे बहुत से करीबी और बहुत से ज़ईफ़ लोग हैं, ज़ईफ़ लोग तुम्हारे जिहाद पर माल खर्च करने से मसाइब से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि जो मुसलमान भाग आए थे उनके अजीज़ व अक़रबा अभी मक्का में काफिरों के तसल्लुत ही में थे। बाज़ लोगों ने यह ख्याल करके क्या खर्च करें का कोई जवाब नहीं, का कोई जवाब यहाँ नहीं। माज़ा के माना कैफ़ा किए हैं, यानी किस तरह खर्च करें, मगर जैसा कि मैंने कहा है जवाब में मौजूद है और आयत नंबर 219 में इसकी वजाहत है। या मुकर्रर सवाल की यानी ये यहाँ एक आयत 219 में है कि ये गर्ज है कि यहाँ अक़रबा और यतामा पर खर्च करने का जिक्र है, वहाँ दुश्मन के मुकाबिल पर। तो बहरहाल यसअलूना का कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम पर जंग करनी लिखी गई,
تم پر جنگ کرنی لکھی گئی اور تم کو ناگوار ہے اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناگوار ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں۔ کیا پہلی بات بتائیے، انسانوں کی جو ہے نا عام زندگی کے اندر لین دین میں اور پھر معاملات کے اندر یہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ارے وہ ہو گیا تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہو، ارے یار فلاں وہاں ہو گیا کام بن گیا تو بڑا اچھا ہے۔ یہ انسان اس کو کشمکش میں جب رہتا ہے تو اس کے بعد میں پھر وقت گزرنے کے بعد میں پتہ چلتا تو جس چیز جو چاہ رہا تھا وہ اگر اس کے لیے ہوتی تو نقصان دہ ہوتی۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں یہ ہوتا کہ ارے اچھا ہی ہوا کہ وہ نہیں ہوا، اگر ہم چاہتے تو جو ہے نا وہ مصیبت ہمارے گھر آ جاتی یا پھر ہم وہ مصیبت کے شکار ہوتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتی ہے۔